So, good evening, everyone. I'm Bhumi, along with my co-host Harsh Kumar Gupta. Warmly welcome you to the Intern Talks 2024, organized by the SPE IIT ISM Student Chapter and CP IIT ISM Student Chapter. We are honored to have with us today our respected seniors who through their dedication and hard work, have secured an internship at one of the prestigious oil and gas company, Kane Oil and Gas Vedanta Limited. Thank you, seniors, for joining us today. So, without further ado, let's begin the session with the first question. So, seniors, the first question is what were the selection rounds in your internship process? See, there were three rounds basically. The first one was your GPA shortlisting. Okay, so for boys, we had a GPA shortlisting of 8.25, and there wasn't any criteria for girls. Okay, then we had the next, and also, yeah, droppers criteria was applied, so Droppers, yes. droppers weren't selected. Yeah, and then we had a second round of GD, group discussion round, and finally, we had the personal interview round. Ma'am, can you please describe the different rounds of your Okay, interview? okay. Yes, ma'am. Okay, so yeah, like the discussion round, see, उसके अंदर you have to either they give you topics, you have to speak around like you have 10 to 15 minutes. So each person there was a group of seven. Okay, so you have to speak for 2.5 or 3 minutes is enough. In group discussion, which you need to keep in mind. Basically, you don't need to dominate the group discussion. Okay, you have to be confident. You have to like even if you speak little, but your point should have like it should be good enough to make a good impact in the group discussion. ठीक है तो होता क्या है कि लाइक रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हो गई उसके बाद लोग हैं तो अराउंड मतलब जितने भी लोग होंगे अराउंड उस हिसाब से ग्रुप में बांट दिया जाएगा 16 लोग थे तो 8-8 का ग्रुप बना था आई गेस तो उस हिसाब से लाइक डिफरेंट ग्रुप्स होंगे एंड उस हिसाब से तुमको टॉपिक दिया जाएगा कि दिस इज अ पॉइंट दिस इज अ टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस करो ठीक है ना डिस्कस करो डिबेट नहीं ये फर्क होता है दोनों में तो यही सब होगा कि लाइक वही सब तो तुम्हें बताया जा चुका है कि कैसे कैसे बोलना होता है कब क्या बोलना होता है पॉइंट्स लिखने होते हैं बेसिकली है ना काटना नहीं होता वो सब तो लाइक ठीक है हम लोग करते रहते हैं बाकी तो आई गेस इंटरव्यू का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है बट जीडी के कुछ यही मेन था आई वुड लाइक टू से कि जीडी को लाइटली मत लेना लाइक जीडी इज सच अ पॉइंट जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों का भी कट जाता है लाइक हुज इजी और नाइस बट हो सकता है कि तुम नहीं क्लियर कर पाए सो दैट्स अ वेरी प्रीशियस राउंड सो डोंट टेक इट लाइटली वेल आई वुड लाइक टू से कि जीडी के लिए प्रिपरेशन इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड सो मॉक जीडी जब भी करवाए तुम्हारा वो कर लेना and how to start and how to conclude these are the two things which matters a lot that how you are starting a GD and how you are concluding it and from the Kane perspective I would say कि conclude करने का chance सबको दिया जाता है in which you have to mention all the points like all the importance points which you think according to you and so and secondly जो भी लीड लेता है लाइक जो भी स्टार्ट करता है जीडी उसे ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट मिलता है तुम्हें मॉक जीडी में बताया गया होगा सो ऐसा एक काइंड ऑफ श्योरिटी होती है कि जो स्टार्ट कर रहा है अगर वो अच्छे से कर रहा है तो उसकी जीडी राउंड क्लियर हो ही जाएगी सो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट दी जीडी इफ यू आर इन अ जीडी ऑलवेज ट्राई टू लीड दैट जीडी इट मीन्स नॉट कि तुम डिसाइड करो बट हाँ कि तुम स्टार्ट कर रहे हो जीडी सो एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा एंड बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा तुम्हें लाइक फैसिनेटिंग वर्ड्स यूज़ करने होते हैं या कुछ वैसा कि तुम्हें कुछ दिखाना होता है इट्स लाइक इन सिंपल इंग्लिश you can conclude a GD in a very nice way but obviously practice is required and don't take it lightly like अभी से ही practice कर लेना अगर तुम लोग किसी speaking clubs में हो then that is nice but अगर नहीं भी हो then have a group with your friends and keep practicing for it that's all Right, ma'am. So, after this GD round, what was the second round? इंटरव्यू होता है यार उसके बाद तो लाइक केन हाँ सर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ठीक है ना हर कंपनी का अलग होता है केन में इंटरव्यू हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू ठीक है उसी में लाइक एचआर क्वेश्चंस अगर पूछना हो तो उसी में पूछ लेते थे बाकी बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू था एंड कितना आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा इस रेंज में चला था सबका इंटरव्यू राइट एंड सर क्या क्या टॉपिक्स मतलब आपसे पूछे गए थे आप देखो लाइक दो चीजें होती हैं या तो वो तुम्हारे पूरे रेज्यूमे से पूछेंगे ठीक है जो जो तुमने मेंशन किया अपने एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग में जो तुमने किया या किसी पे प्रोजेक्ट किया तो और एक होता है वो एकदम रैंडम चले जाएंगे उनको जो मर्जी वो पूछेंगे ठीक है ना जो मर्जी करेंगे
तो हो सकता है कुछ भी, मोस्टली यही रहता है कि बट वो तुम्हारे रेज्यूमे से पूछे। मेरे से मैंने मेंशन किया था अपने टॉपिक्स वगैरह, तो मेरे रेज्यूमे से बस उन्होंने एक चीज पूछी थी, आईपीआर के क्वेश्चंस थे। आईपीआर क्या होता है ये नहीं, आईपीआर के क्वेश्चन थे, अच्छे सवाल थे वो। अदर देन दैट वो पूरा अलग गए थे। आर्टिफिशियल लिफ्ट वगैरह मैंने मेंशन कुछ नहीं किया था, वेल कंट्रोल वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया था मैंने। ड्रिलिंग से पूछे थे काफी सवाल, ये सब मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था। और जो मेंशन किया था वो सब नहीं पूछे, वो वेल लॉगिंग वगैरह, पेट्रोफिजिक्स वगैरह कुछ नहीं पूछे। कॉइल ट्यूबिंग में मेंशन किया था मैंने, थोड़ा अलग था वो नॉर्मल टॉपिक से, बट नहीं पूछे वो। बट अगेन काफी लोगों से पूछा गया है, जो मेरे ही टॉपिक्स थे, मेरे पैनल में ही लोग थे, मेरे पैनल में जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने भी वेल लॉगिंग लिखा था, किसी और ने भी वेल लॉगिंग लिखा था, उनसे पूछा गया था वेल लॉगिंग, मेरे से नहीं पूछा गया। तो दैट वो एंटायरली इंटरव्यू जो है उसके माइंड पे डिपेंड करता है। जो स्लॉट था मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें, तो आई गेस दे वर जस्ट मिडलिंग अराउंड, देख रहे थे, मतलब रैंडमली पूछ रहे थे वो जो उनको पूछना था। अदर देन दैट मोस्टली तुम्हारे रेज्यूमे से ही सवाल आएंगे, एंड बहुत मुश्किल नहीं आते सवाल, कुछ कुछ कभी कभी होता है, थोड़ा मस्ती करना चाहते हैं वो पूछ लेते हैं, बाकी सवाल नॉर्मल रहते हैं। देखो, जो मोस्ट बेसिक चीज तुमको ध्यान में रखनी है अपने रेज्यूमे में, जब तुम टॉपिक डालोगे, रेज्यूमे तो ठीक है, बट जब तुम इंट्रोड्यूस करते हो अपने बारे में, ठीक है, तो दे इवन आस्क कि तुम अपने टॉपिक्स बताओ, अगर तुम नहीं बताते हो इंट्रोडक्शन में कि तुमने क्या किया हुआ, जैसे तुम बताओगे अपनी ओएनजीसी ट्रेनिंग का। सो प्लीज एक चीज याद रखना कि वहाँ पे ऐसे कोई हैवी टर्म्स नहीं यूज करने हैं हमें। वहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड यू आर चैलेंजिंग देम टू आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और हम कितना भी पढ़ ले, वो जो मतलब वो चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है जो हम रिलेट यहाँ कर पाए। सी एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे आईपीआर रेट की पढ़ लिया था अच्छे से, बट उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछे ऐसे जो रियल लाइफ में वहां पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। बुक बुक में नहीं लिखा हुआ है, बुक में कुछ लिखा है बट दैट डजंट अप्लाई ओवर देयर, तो वो चीज पूछ करके फिर तुम्हें बोल देंगे कि नहीं ये तो गलत है। तो उस मोमेंट पे तुमको पहली बात तो मतलब अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं करना है। यू हैव टू से कि ओके सर, आई विल मेक श्योर टू रिवाइज दिस टॉपिक। ये तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड भी दिखाता है कि ओके यू आर ओपन टू लर्निंग इवन इफ गलत है, तो वो भी अपने में कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है गलत है या फिर जो भी है, बट आई वांट टू लर्न, ठीक है। ये एक चीज हो गई। और वही चीज है कि प्लीज हैवी वर्ड्स वगैरह मत यूज करो कि एकदम ऐसे फलाना ढमकाना तुमने बोल दिया कि मुझे ये आता है, और फिर अगर तुम बेसिक क्वेश्चन नहीं बता पाए तो ये अपने में इमेज खराब कर देगा। इसलिए तुम चाहे कोई टॉपिक कितना भी पढ़ लो डिटेल में, लिखना वहां पे मतलब बोलना कि बेसिक्स ऑफ दिस XYZ टॉपिक यू हैव स्टडीड, डोंट से कि ये आता है ये आता है। भारी भरकम नहीं बनाना। एक और चीज कि लोग जनरली 6 7 8 टॉपिक्स बोलने लगते हैं एक के बाद एक के बाद एक। 2 3 टॉपिक्स रखो जिनमें तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो, और बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। सबका से आई मीन लाइक ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग फ्लूइड्स हो गया, अब तक जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तुमने, यू हैव टू बी थरो विद द बेसिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। मतलब ड्रिलिंग का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझसे कोई बेसिक चीज पूछिए कि बता दो ड्रिलिंग के कंपोनेंट्स क्या है, क्या सिस्टम्स है, और तुम बता नहीं पाए हो, चुप हो गए, तो फिर ये खराब हो जाएगा, है ना। इवन दो कोई सब्जेक्ट डिटेल में आता है बट बेसिक नहीं पता किसी और का, तो वो खराब इंप्रेशन है। सबसे पहले बेसिक्स सबके कर लेने हैं, मतलब नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस एटलीस्ट हम आंसर कर पाए। टेक्निकल उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बेसिक सबका आ रहा है। और जो 2 3 टॉपिक्स तुम बोल रहे हो, 3 से 4 टॉपिक्स मैथ्स है यार, 4 से ज्यादा मत बोलने लगना, मतलब वो याद भी नहीं रहता है इंटरव्यू को। तुम 10 टॉपिक बोलोगे एक के बाद एक, तो किसी को याद नहीं रहने वाला तुमने क्या बोला है। सो बेटर है कि 3 से 4 टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेना, और बाकी सबका बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। बाकी ये भाई लोग कि इसलिए तुम अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बता सकते हो कि तुम्हें कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है। लाइक मैंने बता दिया था कि मुझे रिजर्वायर में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक बता दिया था बेसिकली कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मतलब मैंने स्पेशल मेंशन कर दिया था। उनके दिमाग में उन चीज़ रह गई थी, तो जो क्वेश्चन पूछने वाला थे मतलब वहाँ पे पैनल में एक ड्रिलिंग का भी था, एक रिजर्वायर का भी था, एक प्रोडक्शन में भी थे। तो जो रिजर्वायर वाला था उसने काइंड ऑफ सुन लिया था, मुझसे रिजर्वायर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो मैंने प्रिपेयर किया था। ये लोग तुम काइंड ऑफ यूज कर सकते हो टैक्टिक की लास्ट में इंट्रोडक्शन में अपना इंटरेस्ट में मेंशन कर दो कि मुझे ये टॉपिक पसंद है। एंड इसके अलावा अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रिपेयर इन द सेंस कि जो तुमने करके रखा हो वही सब चीजें लिखना। मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा भरा हुआ लगना चाहिए सीवी, मतलब रिज्यूमे कम भरा हुआ भी रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम क्वेश्चन पूछेंगे तो तुमको टाइम मिल जाएगा कि कम चीजों में फोकस करके तुम्हारे ऊपर में ज्यादा तुम्हारे बारे में जान सके कि तुम्हें कैसा आता है। और तुमने सीवी मतलब रिज्यूमे भरने के चक्कर में कि मेरे को इतना सब कुछ आता है, मैंने इतना सब कुछ कर रखा है,
तुमके पास टाइम तो लिमिटेड है 20 से 25 मिनट, तो लोग उनके पास मतलब तुमको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तुम्हारा मतलब ट्रू पोटेंशियल क्या है। इसमें तुम लोग ट्राई करोगे अपना जो भी उसके अंदर इनपुट कर रहे हो अपना रेज्यूमे के अंदर, वो टू दी पॉइंट हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, तुम्हें आता हो, और उसके अराउंड तुम्हें क्वेश्चन पूछे, तुम उसको अच्छे से आंसर कर सको। ये चीज ध्यान रखना। और बाकी फिर जो तुम अपना इंटरेस्ट रखते हो और जो तुम अपना सॉफ्ट स्किल में अपना लिखते हो कि मेरा ये स्ट्रेंथ है वीकनेस है, तो एचआर में वो चीज फोकस करके पूछते हैं। तुम्हारा वो लोग लीडरशिप स्किल टेस्ट करते हैं कि तुम मतलब कैसे हो, टीम प्लेयर हो कि नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच के, मतलब वो चीज जज करते हैं तुम्हारे बात करने के वे से, वो सब चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बाकी कॉन्फिडेंस वगैरह ना, भले आंसर ना आए ना, मतलब आए या फिर ना आए, दोनों केस में। एंड थर्डली है कि जो टॉपिक होते हैं, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने लॉगिंग में लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे केन में लॉगिंग का वो लोग स्पेसिफिकली मतलब उनका खुद का वो नहीं है लॉगिंग का सर्विस, मतलब वो स्क्रम वर्जर से लेते हैं, हेलीबर्टन से लेते हैं सर्विसेज, उनका खुद का नहीं है। तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुमको लॉगिंग बहुत अच्छे से आता भी हो नहीं हो, लेकिन जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, कैपेक्स में, ओपेक्स में, ये सब रिक्वायरमेंट में, कैपेक्स ओपेक्स में बेसिकली वर्क ओवर हो गया, सीटीयू, सिक लाइन, ई लाइन हो गया, तो तुम अपना जो प्रोजेक्ट में लिखोगे फील्ड लर्निंग में, ओएनजीसी ट्रेनिंग में, अगर तुमने सपोज वहां पे देखा नहीं है, लेकिन अगर तुमने खुद से सब स्टडी कर लिया कि मेरे को ई लाइन, सिक लाइन आता है, सीटीयू आता है, और तुम इसमें मेंशन कर दोगे, तो लोग तुमको मतलब तुम्हारे काइंड ऑफ एज रहेगा in comparison to the rest. And one more point that I would like to add is that whenever you attend the interview, right, try to be confident in your answers. Don't be like don't be unsure of yourself, okay? And if they ask some kind of tricky questions, right, try to ask them more about the question. For example, मेरे केस में थोड़ा unclear था, मतलब थोड़ा general question पूछ लेते, so sometimes in that case, right, you can just ask more details about that question. And in point of GD, right, GD, always try to be clear with what you're saying, okay? Because there will usually be people fighting over to say some things, so you should always be clear in what you say. Keep it short and concise, and your point should be different from what the rest of the guys are doing. It should be different from the crowd. अच्छा यार, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इंटरव्यू में ये भी देखा जाता है लाइक तुम अपना जीपीए कैसे जस्टिफाई करते हो, ठीक है ना? तो तुम्हारा बहुत अच्छा जीपीए है एंड तुम एकदम मतलब क्या ना कि बेसिक बेसिक बता नहीं पा रहे हो, तो खराब इंप्रेशन डालता है। सिमिलरली लो जीपीए वालों के लिए, ठीक है ना, उनका लाइक वो एक इंप्रेशन पड़ेगा कि तुम्हारा जीपीए कम क्यों है ना? कम है तो देखो, कम को तुम मतलब अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो। ठीक है यार, तुम्हारा रटा वटा नहीं जाता, ठीक है ना, वो तो टीचर मार्क्स दे देते, बना के लिखो कैसे लिखो उस पर, बट तुमने टेक्निकल नॉलेज गेन की है या नहीं, ठीक है, तो तुम उसको अपने एडवांटेज में भी यूज कर सकते हो। तो बोथ साइड्स यू शुड जस्टिफाई योर जीपीए, ठीक है ना। 8.5 के ऊपर वाले जो है वो तो यार लाइक तुम्हें आना चाहिए, सबका ओवरव्यू पता होना चाहिए, है ना। अभी साक्षी ने कही थी ना ओवरव्यू वाली बात, वो तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, जियोलॉजी भी हो, उसका भी तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा ओवरव्यू। तुम्हें नहीं पता, पूछा जा सकता है यार, इतनी ज्यादा जीपीए तुम्हारी, बताओ कैसे है, पूछा ही जा सकता है, बस रट के है ये कैसे है। तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखना, जो 8.5 के ऊपर है ना, वो एटलीस्ट वो तो कर ही लेना सब कुछ, वो मतलब ऐसे मत छोड़ना। हाँ, कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग रखना, बट ओवरव्यू तुम्हें सबका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बेसिक तुमसे पूछ लिया, है ना, कि पेट्रोफिजिक्स आता ही नहीं है, रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ लिया बता नहीं पाए, ये नहीं होना चाहिए, समझे ना। And also, I think that if you don't know an answer, na, then don't try to fool them. Like they are already very senior. So when nahi aata hai kuch, then accept it and say it nicely that I haven't studied it till now. And या फिर वो next semester में पढ़ना है, whatever it is. So don't try to make lame answers by saying anything which you don't know about it. Like be clear कि हाँ ये अभी तक नहीं पढ़ा है, next time पढ़ लेंगे या next semester में complete कर लेंगे, whatever it is. And I think that when you are starting an interview, right? So सबसे पहले तो वो HR का क्वेश्चन आता है जो हमारे साथ हुआ था बेसिकली। सो एचआर से तुम जब अपना इंट्रो दे रहे हो ना, देन व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग इन इट, व्हाटएवर योर अचीवमेंट यू आर मेंशनिंग इट। लाइक मैंने अपने टाइम निफ्ट का दिया था, सो दे आस्क्ड मी अबाउट इट, लाइक माय 2-3 क्वेश्चंस वर अराउंड इट कि अगर तुम्हारा निफ्ट क्लियर हुआ था देन व्हाई यू आर चूजन आईटी, लाइक व्हाटएवर इट इज। सो व्हाटएवर सॉफ्ट स्किल्स यू आर मेंशनिंग देयर, बी क्लियर दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन इट एंड यू आर नॉट फेकिंग एनीथिंग, एंड इवन इफ यू आर फेकिंग इट देन फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। सो वो ध्यान में रखना कि अगर तुम कुछ सॉफ्ट स्किल डाल रहे हो, इवन मैंने लिखा था कि उन्होंने पूछा था हॉबी में डांस के अलावा लाइक क्या है, तो मैंने चेस पे लिखा था कि मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है। सो दे आस्क्ड अबाउट इट आल्सो कि क्या रूल्स होते हैं चेस के। सो लाइक वो सब भी ऐसा उनके मूड पे डिपेंड होता है कि क्या कर रहे हो। तो फिर अगर कुछ भी तुम मेंशन कर रहे हो ना, तो हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग,
लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस अपनी पढ़ाई के अलावा जो भी तुम स्किल्स डाल रहे हो, एंड ट्राई टू मेक अ प्रॉपर इंट्रो इन शॉर्ट एंड अ वेरी कंसाइज मैनर, जिसमें तुम अपनी सारी मेरिट्स डाल दो कि तुम्हारी क्या एक्सपीरियंस है, क्या तुमने करा है, लाइक 12th के बाद कौन कौन से एग्जाम्स दिए, NTSC NF जो भी दिया होगा जिसने भी, वो सारे, और यहाँ पे भी आने के बाद तुमने कितने एक्सपीरियंस गए हो, कोई इंटर आईटी गया है, कोई किसी कंपटीशन में गया है, मेंशन एवरीथिंग, एंड सब कुछ जस्टिफाई कर सको, वो सब कुछ मेंशन करना कि अगर SP में हो तो फिर क्या क्या किया है। सो हैव अ प्रॉपर पिक्चर अबाउट इट, कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारी जर्नी क्या रही है, तो यू कैन आंसर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन वाइज हमारी इंटरव्यू चली थी। फर्स्ट HR आस्क्ड 2-3 क्वेश्चंस, देन रिजर्वॉयर इंजीनियर, देन ड्रिलिंग, देन प्रोडक्शन। सो सारे हर लोग इन पैनल में लाइक सबने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा था। सो हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग इन योर इंट्रो। And one more point, before attending the interview, right? My HR asked me, why do you want to join Kane? So basically, before you even apply for Kane, right? You should go to the website. You should know what the company is doing. It is very important because the HR usually asks that. केन का लिंक्डइन प्रोफाइल सब लोग फॉलो कर लेना, बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं, तो वो काफी यूजफुल होता है, तुमको लाइक कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, और जीडी में भी हेल्प होगी, क्योंकि अगर यू नेवर नो कि कौन सा रिलेटेबल टॉपिक आ गया और तुमने वो मेंशन कर दिया, तो वो तो तुम्हारा ऐसे ही प्लस पॉइंट हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन में भी और HR राउंड में भी ऑब्वियसली होता है। और देखो मतलब एक चीज होती है कि अपना टेम्परामेंट मतलब खोना मत, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम में इट इज पॉसिबल कि तुम्हारा मतलब जैसे सेकंड पैनल का हुआ था कि सारे एक एक सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए थे, जो हमारा फर्स्ट पैनल था उसमें तो बस पूछा गया था, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बोला था, फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं पूछे थे सबसे शायद, तो उनके मूड पे था वो, जैसे नील का पहला इंटरव्यू था तो उन्होंने तो काफी अलग अलग चीजें पूछी, मतलब जो रिलेटेड भी नहीं थी जो उसने मेंशन किया था उससे। फिर सेकंड जैसा मेरा चला तो मेरे से भी जस्ट एक दो चीजें पूछी जो मैंने मेंशन किया था, उसके बाद में वो ड्रिलिंग वगैरह पे चले गए, ड्रिलिंग था भी नहीं मेरे उसमें लिखा हुआ, तो वही चीज है कि बेसिक सबके रखोगे तो मतलब जैसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे थे मुझसे, नॉर्मल पूछे थे, मतलब कि तुम्हारी लाइक रटा हुआ चीज नहीं चाहिए उनको, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि वो तुम पूरी एकदम जो प्रॉपर्टीज है रटी हुई तुमको चाहिए, उनको चाहिए थे कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है, तो ऐसे टाइप में अंडरस्टैंडिंग ठीक रखना। जैसे पूछा था एक क्वेश्चन की मतलब वाटर पीस मड और ऑयल बेस्ड मड दोनों में मतलब बताओ कि कौन से कब यूज करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के साथ में, तो फिर वो रटने की कोई जरूरत नहीं है ना उसमें, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है पहले से तो तुम बोल ही पाओगे ऑब्वियसली। तो वैसी चीज है कि मतलब सबके बेसिक्स क्लियर रखना, और अगर इंटरव्यू तुम्हारे हिसाब से नहीं जाता है तो मतलब ये नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना उधर की, मतलब अपनी नहीं हो पाएगा टाइप्स, क्योंकि मेरे से तो इंटरव्यू में 3 बार बोल दिया था कि यू शुड रिवाइज, यू शुड रिवाइज, सो आई वाज लाइक ओके आई रिवाइज, ओके आई रिवाइज, तो वैसे टाइप में भी मतलब रखना थोड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, बोल जाए तो बोलने लो, तुम बताओ अपने लाइक पूरे इंटरव्यू में एटलीस्ट मेंटेन रखना कि जितना पढ़ा है उतना बता देना एटलीस्ट। बाकी है कि तुम लोग को मतलब रीजन पता होना चाहिए लॉजिकली। सपोज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है तो बबल पॉइंट प्रेशर के नीचे लो होता है, डिक्रीज होता है, तुमसे पूछा रीजन क्यों होता है, मतलब लॉजिकली तुमको पता होना चाहिए हर चीज का कि म्यू नॉट हो गया, बी नॉट हो गया, अदर पैरामीटर हो गया पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज के, तो कम होते हैं तो क्यों होते हैं, मतलब हम लोग मोस्टली क्या एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मार लेते हैं कि कम हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर तुम लॉजिकली रीजन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा तो लोग तुम्हारा जज करते हैं कि बस तुम्हें सिर्फ वैल्यूज या पैरामीटर्स बस याद है या फिर उसका रीजन भी पता है। कुछ चीज अगर तुम अच्छे से समझोगे लॉजिकली, तुम्हें बस इंटर्न क्रैक करने में नहीं मतलब यहाँ पे भी काम आएगा, तो वो चीज तुम लोग ध्यान रखना। Seniors, does projects influence selection in Kane also just like other companies? देखो अच्छा, तो मैं पहले बताता हूँ इसका, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं डाला था, ठीक है ना, केन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लाइक दूसरी कंपनीज का इन्फ्लुएंस होता है थोड़ा। केन में प्रोजेक्ट का देखो इन्फ्लुएंस क्या होता है कि तुम्हारा एक टेक्निकल क्वेश्चन जो वो खुद से पूछने वाले थे वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट वो डिस्कस करेंगे तुमसे, एंड हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट से कुछ सवाल पूछ दे वो, तो एक सवाल तुम खुद से बना, मतलब तुम उन्हें खुद से ही बना के दे रहे हो सवाल कि आओ तुम यही पूछो मेरे से, ठीक है ना, तो एक सवाल तुमसे जो पूछना होता है वो कम हो जाता है। ये इन्फ्लुएंस रहता है केन में। बाकी मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, मतलब ना मैंने केन में कोई प्रोजेक्ट डाला था, ना मैंने बेकर में कोई प्रोजेक्ट डाला था। बेकर में थोड़ा इन्फ्लुएंस रहा था आई थिंक प्रोजेक्ट का, बट केन में वही कि सवाल एक ले सकते हैं वो
बाकी अदर देन दैट कोई नहीं। हाँ यार वही है, मतलब केम में मुझे भी लगता है मेरा भी प्रोजेक्ट नहीं था, और अभी भी जितना मैंने देखा है केम में मेरे एक्सपीरियंस आई थिंक वो एक्सपेक्ट करते कि तुम्हें जो नॉलेज है ना वो ज्यादा अच्छी हो, प्रॉपर हो, मतलब सारी बेसिक्स तुम्हें आ रही है। वो चीज उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि तुम्हारा नॉलेज ज्यादा है। और तो प्रोजेक्ट डालोगे तो वो अच्छी बात है, प्रोजेक्ट डालोगे तो वो टॉपिक अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे प्लस पॉइंट है। अगर वो टॉपिक पूरे अच्छे से आता है और तुमने डाल दिया प्रोजेक्ट एंड तुम उनके सारे क्वेश्चन आंसर कर देगा तो वो तुम्हारी अच्छी इम्प्रेशन हो जाएगी वहां पे। तो वही चीज है। या लाइक मैंने प्रोजेक्ट डाला था, सो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम डाल रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम होगा, बट हाँ एज नील मेंशन्ड कि तुम अगर प्रोजेक्ट डाल रहे हो देन यू शुड नो अबाउट इट कम्प्लीटली उस टॉपिक के बारे में, बिकॉज तुम्हारा एक क्वेश्चन तो उससे आएगा तो वो एक फिक्स रहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू इस टॉपिक पे तो चलेगा ही। तो एक लाइक तुम्हारे पास एक प्रीसेट रहेगा कि तुम एक अगर तुम्हारी 30 मिनट्स की इंटरव्यू चलेगी तो एटलीस्ट यू कैन टेक दैट क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स। तुम अगर इलेबोरेट कर रहे हो अपना प्रोजेक्ट या तुम कुछ भी बता रहे हो, so it's like you can spend your time in an interview in a particular topic, right? So that would be a plus point, and I would say that something is better than nothing. Then अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारे पास है कि तुम बना सकते हो then कर सकते हो, like easy प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली अभी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या कुछ बहुत वैसा नहीं था, that was a very basic project on IPR TPR, so yeah तुम अगर कर सकते हो। एंड IPR TPR ऐसे भी एक टॉपिक है जो पूछते ही हैं, तो उसमें अगर तुम करके अपने प्रोजेक्ट से एक्सप्लेन कर देते हो then that would be nice, क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट ही किया था वो प्रोजेक्ट देख करके, लाइक मैंने लिंक डाला था तो सो इट वाज नाइस। बाकी फर्क तो नहीं पड़ेगा आई गेस, बिकॉज बाकी किसी का पड़ा नहीं, दूसरे इंटरव्यू में मे भी पड़े, बट या अगर कर सकते हो तो इससे कर छोटे लो। प्रोजेक्ट्स बना ही सकते हो। हाँ लाइक वैसा कुछ है नहीं कि इशू है, अगर टाइम है करना है तो कर सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट टॉपिक, बाकी तो चले। छोटे प्रोजेक्ट्स खुद से बना ही सकते हो, लाइक जरूरी नहीं मेंशन करना, मतलब मन किया तो कर दे। जैसे किल शीट तो बनाना ही आ गया होगा सबको अब, है ना? एक्सेल पे प्लॉटिंग वगैरह ये सब तो सीख ही सकते हो, तो बेसिक ये इतना कर ही सकते हो। बाकी फिर तुम आगे पढ़ोगे इसी सेमेस्टर में शायद से अप्लाइड रिजर्वोयर, तो उसमें मटेरियल बैलेंस का कैलकुलेशन भी कर पाओगे, हैवलैंड नॉर्डे का वो भी बना सकते हो। वो हमारा एक दोस्त डाला था SLB के इंटरव्यू में, तो उससे सवाल किए गए थे उस पर। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन किया तो डाल देना, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस टॉपिक पे ग्रिप अच्छी हो गई है तो डाल देना, ठीक है? बाकी थोड़ा सीख, मतलब करोगे तो थोड़ा एक्सेल भी सीख जाओगे, काम आएगा ये, है ना? तो ये छोटे छोटे चीजें बना लो, टाइम है तो बना ही लो। Okay, so what were the things that we should kept in mind while making our CV? CV का वही यार, जैसे बोला था शुरू में कि फैंसी चीजें ट्राई करो ना लिखने का, ठीक है ना? और CV पहली बात तो रिव्यू कराओ सीनियर्स से, ठीक है? मतलब ऐसे ही अप्लाई करने से पहले कहीं पे भी किसी सीनियर से रिव्यू करवाओ। फॉन्ट वगैरह वो सब तो ठीक है, वो मतलब तुम लोग भी समझते हो किसका कैसा फॉन्ट रखना है, क्या रखना है, अलाइनमेंट कैसा रखना है, वो सब तुम लोग बेहतर समझोगे। बट टॉपिक्स जो तुम लिख रहे हो, ठीक है ना, उन पर थोड़ा ध्यान दो। लाइक कुछ भी डाल दोगे यार, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। एक कोई मेरे से दिया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट कोई कोरिलेशन यूज करके वो कुछ निकाला था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कुछ, तो ऐसी चीजें मत डालो, ठीक है ना? वैसी चीजें डालोगे फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट पे आएंगे वो लोग, वो अपना मतलब वो दिखा देंगे अपना रिजर्वोयर इंजीनियरिंग। और तुम कितना भी करो यार वहां पे, मतलब कोई 4 साल एक्सपीरियंस, कोई 5 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 12 साल एक्सपीरियंस वाला आ रखा है, उससे थोड़ी ना ज्यादा आता होगा यार तुम्हें। तो मतलब उनसे क्या है, यहाँ पे जो GT है होते हैं उनसे भी तुम्हें ज्यादा नहीं आता होगा, मतलब जो ज्वाइन किया जस्ट। तो मतलब वो इम्प्रेस करने का ट्राई मत करो कि मैं ऐसे डाल दूंगा तो मैं इम्प्रेस कर दूंगा काफी, ऐसा मत सोचो, ठीक है? टॉपिक डाल रहे हो कोई ऐसा, ठीक है, हल्का फुल्का डालो कोई, और जैसे आउट ऑफ द बॉक्स डालना चाह रहे हो, जैसे ई लाइन, जैसे आदर्श ने बोला ई लाइन, स्लिक लाइन, कॉइल ट्यूबिंग, यहाँ केन में काफी यूज होता है, डाला था मैंने भी कॉइल ट्यूबिंग। बट मेक श्योर कि तुम्हें आता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि बस जस्ट डाल दिया। मैंने कोर्स किया था उसको प्रॉपर, यूडेमी पे प्रोफेशनल कोर्स है वो किया था मैंने, तब जाके मैंने डाला था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कॉइल ट्यूबिंग मुझे आता है, बेसिक तो मैं बता ही दूंगा अच्छे से, तब जाके मैंने डाला था। तो ऐसे मतलब मैं सोच लेना कि हाँ इम्प्रेस कर देगा ये टॉपिक तो मैं डाल देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर वो देख लेंगे, मतलब कि तुम, वो समझ जाएंगे कि तुम इम्प्रेस करने के लिए डाल रहे हो या क्या डाल रहे हो, ठीक है ना? तो ये चीजें सोच समझ के डालो, और बेसिक टॉपिक डालो यार, ऐसा कुछ वो नहीं होता। मतलब बेसिक डाल दे सवाल, वो उससे अच्छे, मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट कर लो उसके। पेट्रोफिजिक्स से कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, वेल लॉगिंग के इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है, वॉश आउट वगैरह तुम पढ़ना आ गया कि लॉग्स देख के तुम्हें लगता होगा 47.6 या कितना पोरोसिटी मैक्सिमम होता है, वॉश आउट दिख जाएगा, उससे ज्यादा पोरोसिटी आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना? ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक एकदम सिंपल चीजें ही हैं, बट इन्हीं को बना के कितना बढ़िया सवाल बन सकता है, तुम वहीं पे इम्प्रेस कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एकदम बेसिक टॉपिक डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि CV में लिख दिया पोरोसिटी परमेबिलिटी, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। लिख रहे हो थोड़ा इत्मीनान से लिखो,
पेट्रोफिजिक्स, वेल कंट्रोल, इस टाइप का। वेल कंट्रोल तो आ ही गया है पूरा, इतना मतलब राजकिरण ने तो ग्राइंड किया ही होगा कि तुम लोग बता पाओ, तो वो लिख सकते हो। तो ऐसे ऐसे लिखो, और उन लोग को नहीं पता तुम्हारे कोर्स में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब आ, तुमसे पूछ लिया गया, आर्टिफिशियल लिफ्ट पूछ लिया गया और तुम बोल रहे हो कि मतलब एकदम चुप हो गए, तो बताओ ना यार कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाया गया है। नहीं पढ़ाया गया, कोई इशू नहीं रहता, फिर छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा बोल दो कि सर नहीं पढ़ाया गया, बस बात खत्म। झूठ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, उन्हें नहीं पता है ना। बट ऐसा मत बोल देना कि ड्रिलिंग नहीं पढ़ाया गया है। ड्रिलिंग पूछ लिया, सर ड्रिलिंग नहीं पढ़ाया गया। ठीक है ना? नील सर ने कहा था बोल दे रहे ऐसे, ये मत कर देना, ठीक है। बाकी तो हाँ, बाकी लोगों से पूछो। हाँ, बट तो ये जो मतलब था ना सीटी ई लाइन स्लिक लाइन, तो ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है। मतलब एक चीज ही नहीं है सिर्फ कि तुमने सिर्फ सीटी का देख लिया ओवरव्यू कंपोनेंट्स वगैरह। अगर तुमने बेसिक ही पढ़ा है उसका, तो मतलब जैसे तुमने सिर्फ कंपोनेंट्स पढ़े हैं, तो फिर मतलब इट्स बेटर कि तुम बस लिख दो कि बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े, क्योंकि सीटी में इतना कुछ होता है। सेम फॉर ई लाइन, सेम फॉर स्लिक लाइन, बहुत कुछ होता है। तो जब तक तुम्हें पूरा अच्छे से नहीं पता है, मत ही डालना ऐसा सब, क्योंकि फिर ये लोग काफी काफी कुछ पूछ सकते हैं। और मतलब इंटरेस्ट वाली चीज मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज मत मत करना। मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करना है, कुछ भी फैंसी चीज, कुछ भी वैसे भारी भरकम तुम्हें लगेगा कि मैं लिख दूं कि इवन इफ लाइक जैसे उस दिन जीडी में बता रहे थे कि तुम लोग ने जैसे आर्टिफिशियल लिफ्ट वगैरह पढ़ा है, एसआरपी और मॉडलिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो ठीक है वो लिखना, बट वही बेसिक किया है और एकदम स्पेसिफिक जो किया है ना वही लिखो। और बी मेक श्योर कि जो तुम लिखा है वो एकदम तुम ठीक से बता पा रहे हो उसको, क्योंकि तुम लिख दोगे वो चीज और फिर वो कुछ पूछ देंगे ना, मतलब फिर बता नहीं पाए तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसी वजह से, और वो लोग बहुत कुछ पूछते हैं। मतलब हम लोगों को ही अभी हम जाके कुछ फैंसी चीज कोरिलेशन वगैरह तो गलती से मत बोलना, ठीक है। मतलब मैं बोल चुकी हूँ यहाँ पे, कोरिलेशन गलती से यूज कर दिया था, उसके बाद में फिर क्या हल होती है ये तो मतलब क्या ही बताऊँ। काफी कुछ बोलते हैं, काफी कुछ सुनने में आता है, बहुत कुछ सुनाते हैं ये लोग यहाँ पे जब तुम आ जाते हो तो। अभी फिर इंटरव्यू में तो सुना नहीं सकते, तो इंटरव्यू में तो आउट कर देंगे। इसीलिए इससे बेटर है कि मतलब ये सब भारी चीजें नहीं यूज करनी है। एकदम सिंपल रखो, जो पढ़ा है वही बताना है, सिंपल चीज में। और कुछ बता रहे हो एकदम आना चाहिए बस। मतलब जो तुम्हारे आंसर्स हैं वो लोग काइंड ऑफ वहीं से अगला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो जो अपना आंसर दो तुमको मतलब आगे का क्वेश्चन जो तुम वर्ड्स यूज कर रहे हो, जैसे कि तुमने यूज कर लिया रिलेटिव परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, तो लोग फिर तुमको टारगेट कर लेंगे यार इतने वर्ड यूज किया लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर वहाँ काइंड ऑफ नेगेटिव इमेज बनेगा। तो चीज़ें तुमको जो आती हैं जिसके बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो वही वर्ड यूज करो। हो सकता है अगर तुम्हें उसका टेक्निकल वर्ड नहीं पता हो तो तुम इजी लैंग्वेज में यूज कर लो, ताकि उनको मौका ना मिले वो चीज़ सोचने का। एंड बाकी ये भी है कि लोग डायग्राम भी कॉपी में बनवा देते हैं कभी कभी। मेरे मेरे केस में क्या हुआ था, वो बोल दिए थे कि कॉपी है, तो तुम लोग क्या बोलते, मतलब पूछा मुझसे कॉपी में हाँ सर है, तो बोला कि डायग्राम बना के दिखाने के लिए। तुमको 2 डायग्राम बना के बोला कि एक हिस्टैरिसीस का बना के बताओ, एक्सप्लेन करो इसमें। फिर दूसरा ये कि एक पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी दे दिया, उसका बोला कि प्रेशर के साथ वेरिएशन क्या होगा। तो तुम डायग्राम जो होते हैं उस पर भी फोकस करना, ये नहीं कि ऑनलाइन है तो मेरे को डायग्राम नहीं आना चाहिए। बाकी यही चीज़ें हैं। या लाइक जैसा आदर्श ने बोला, मेरे केस में भी लाइक मुझसे ग्राफ्स बनवा लिए थे, जो भी फेस डायग्राम वगैरह होते हैं अलग अलग रिजर्वर के, वो सारे। तो जो भी एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना कि कहाँ पे प्लॉट चेंज हो रहा है, बबल पॉइंट आ रहा है तो कैसे ग्राफ चेंज हो रहा है, वो ऐसे पूछ लेते कि अगर आता है तो बना के दिखाओ वो प्लॉट। And rest, I would say that you are the driver of your own interview. So always try to direct in the way in which you are confident, right? ऐसा कुछ भी वैसा तुम बोल रहे हो, जैसे उसने कहा कि तुम्हारे ही आंसर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एंड ये हमेशा ही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि तुम जो आंसर दे रहे हो उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे ही आंसर से इन डेप्थ पूछ लेते हैं। So always try to be very concise in the words which you are using while your interview, right? And try to direct in the way in which you are very confident. जिस सब्जेक्ट में तुम कॉन्फिडेंट हो उसी डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू को लेके जाओ, क्योंकि तुम पे ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इंटरव्यू किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर तुम रिजर्वर में अच्छे हो तो वैसे वर्ड्स ही यूज़ करो जिसके बारे में अगर वो और पूछें तो तुम अपना बता सकते हो आंसर। एंड ये इतना इम्प्रॉम्प्टू निकलता नहीं है, सो जब तुम मॉक इंटरव्यू दोगे सीनियर्स के पास जा करके, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो तुम्हारे आंसर से बनाते हैं। तो इंटरव्यू के पहले ट्राई करना कि 2-3 मॉक दे करके जाओ किसी के पास भी। लाइक अगर नहीं भी दे रहे हो तो चले, बट देख लेना, इतने सीनियर्स है तो हेल्प तो मिल ही जाएंगी। और प्लॉट्स वगैरह भी मॉक ध्यान से देखना, जो भी ग्राफ होते हैं।
सारे टॉपिक्स के, स्पेशली पेट्रोफिजिकल में तो वो होते हैं बहुत सारे, तो वो सब देख लेना सारे। Sir, for questions like tell us about yourself, is there any particular format in which we should answer that? So actually, like हाँ तो like इंटरनेट पे देख सकता है कि कैसे बनाते हैं, but actually in my case I actually did my own. Like I spent a lot of time in preparing my own introduction. क्योंकि if you like just directly copy from the internet, right? बाकी लोग भी copy करेंगे, so you know it won't be unique. I would suggest that you spend a lot of time for your introduction. Everyone's life is unique, right? You have to like tell them how your life is going, what you know, because everyone doesn't know the same thing. So yeah, try to make your introduction unique. I mean, you can kind of prepare like how it should be, or how the structure of the introduction should be. But I would suggest don't just directly copy it from the internet. Make yours different. हाँ तो मैं ये कह रहा था लाइक हाँ वो बात सही है, लाइक तुम शुरू में ही एक इम्प्रेशन डाल सकते हो, क्रिएटिव दिखा सकते हो खुद को, दिखा के कि मतलब इंट्रोडक्शन एक अच्छा करके। बाकी इंट्रोडक्शन देखो सिंपल रखना होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा मत रखना एंड बहुत लंबा मत रखना कि एंड तक आता है तो भूल जाए तुमने क्या कहा था, है ना। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, तुमसे नाम पूछ रहे हैं, कॉलेज पूछ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में ही ट्राई करना कि तुम अपना एक्सपीरियंस बता दो, लाइक ये जो भी तुमने फील्ड में सीखा या अपने ट्रेनिंग में सीखा, कोई प्रोजेक्ट है अगर तुम्हारा तो इंट्रोडक्शन में ही बता दो, तो उस हिसाब से रखना। और ध्यान में रखना क्या क्या, एक आदमी की लाइफ काफी लंबी होती है, मतलब तुमने अब तक काफी कुछ कर लिया होगा, बट तुम्हें ध्यान में रखना है तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें अपना पीओआर बताना है, नाम बताना है, ब्रांच वगैरह पता है उन्हें, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा है कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो रहा है, हटा दो वो चीजें, बोल दो IIT ऐसे मार्क्स में ये वो, ठीक है ना, ये पीओआर है, ये स्पोर्ट खेलते हैं, इसमें इंटरेस्ट है। बाकी फिर अपना मेजर टाइम देना अपने लाइक जो तुमने किया है समर ट्रेनिंग में। हो सकता है क्योंकि वो इंट्रोडक्शन सुन ले फिर खुद से सवाल पूछने लग जाए, है ना। तो तुम अपना सीवी की तरह, क्योंकि केन वाले सीवी नहीं पढ़ते, वो सीवी पढ़ेंगे नहीं तुम्हारा, वो जीपीए देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ही बताना पड़ता है इंटरव्यू में, बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होता, बेकर SLB इन सब में तुम्हारा सीवी पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, बट केन में नहीं पढ़ते है वो सीवी। तो तुम्हें इंटरव्यू में ही बताना पड़ता है कि देखो मैंने ये किया है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन कि भूल जाए सुनते सुनते क्या हो रहा था क्या नहीं, ठीक है। एंड टॉपिक्स भी अगेन बहुत सारे नहीं होने चाहिए, वही बात है कि 6 टॉपिक्स लिख दिए, याद ही नहीं रहा क्या क्या बोला था, ठीक है। तो वो तुमसे नहीं पूछेगा फिर से, क्योंकि टॉपिक वो अगर भूल गया वो तुमसे नहीं पूछेगा तुमने क्या कहा था, वो खुद से पूछने लग जाएगा जो उसका मन करेगा। कोई रूल थोड़ी है यार कि सीवी वाले पूछूंगा मैं, या जो तुमने बोला वही पूछूंगा, ये सब चीजें ध्यान रखना। एंड आई वुड लाइक टू से कि जैसा वेंकटेश ने बोला कि ट्राई टू मेक योर ओन इंट्रोडक्शन, लाइक डोंट मेक इट सो फॉर्मल, और नेट से कॉपी किया हुआ तो पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं। टेक अ रेफरेंस फ्रॉम योर सीनियर्स इंट्रो, लाइक अगर तुम्हें चाहिए रेफरेंस मांग लो, बट ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन इंट्रोडक्शन, लाइक इट एक्चुअली प्लेयर्स अ इम्पॉर्टेंट रोल व्हाइल यू आर स्टार्टिंग योर इंटरव्यू, क्योंकि तुम्हारी इंट्रोडक्शन से तुम्हारी इंटरव्यू शुरू होती है। HR का पहला क्वेश्चन ही होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर अपना इंट्रोडक्शन दो। सो हाउ क्रिएटिवली यू आर गिविंग दैट, and how in a dignified manner you are like mentioning all your merits and achievements till now plays an important role actually, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के जस्ट बाद मेरी HR ने बोला था कि that it was nice your introduction was nice। so अगर तुम्हारी फर्स्ट स्टेज में तुम्हें कोई अप्रिशिएट कर देता है इंट्रोडक्शन के बाद, then you will also feel confident आगे का आंसर्स देने में, भले आगे टेक्निकल सारे ना दे पाओ वो तो ऑब्वियस है, बट इंट्रोडक्शन एक बार चेक भी करवा लेना जब भी दे रहे हो। इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, बट काफ़ी प्रिसाइज और इजी वर्ड्स में होना चाहिए, आई फील सो। एंड बाकी हाँ, इंट्रोडक्शन पे थोड़ा ध्यान देना, टाइम देना, ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट में कुछ भी नॉर्मल ISM वाला इंट्रो दे दिया। अच्छे से डिफाइन करके अपनी जर्नी 10, 12 वॉट एवर यू आर मेंशनिंग अच्छे से दे सकते हो, उसे काफ़ी क्रिएटिव और अच्छा बना सकते हो अपने इंट्रोडक्शन को। And seniors, one last question. What general tips and tricks would you like to offer from your overall preparation journey and interview process? पढ़ाई करो यार, सबसे जरूरी है पढ़ाई करो, ठीक है ना। स्किल से सब काम आएगी, ट्रिक्स वगैरह सब चलेंगे, पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पढ़ाई करो, टॉपिक्स भी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, ठीक है वो सब ठीक है, बट मेन चीज ये है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला। हाँ पढ़ के नहीं होता कई बार, ये मैं मानता हूँ, कई बार कई लोगों का पढ़ के नहीं होता है, बट बिना पढ़े तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, वो टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है। बाकी तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स चलती रहती है यार, वही सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है कि इधर इंटरव्यू डाइवर्ट करना है, ये करना है वो करना है, बट मेन चीज वही है, पढ़ाई करो और कम्युनिकेशन अच्छी रखो बस। टॉपिक वाइज मतलब तुम लोग ये नोडल एनालिसिस ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बाकी उनका फोकस रहता है कि तुमको VLP IPR ये अच्छे से आना चाहिए,
ड्रिलिंग में हो गया कि बेसिक ड्रिलिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, मड सिस्टम, सीमेंटिंग सिस्टम, जो जो भी है, ब्रिज प्लग क्या होता है, टॉप प्लग क्या होता है, कैसे मतलब किस सीक्वेंस में जाता है, ये हो गया। एंड फिर एंड रिजर्वायर इंजीनियरिंग के मतलब वही पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। एंड मतलब यही सब बेसिक, मतलब तुमको बेसिक तो आना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर तुम्हें हाई फाई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो बेसिकली तुम्हारे सीजी देख करके तुम्हारे नॉलेज के मतलब अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा सीजी है, तुमको चाहिए तुम बहुत ज्यादा उस चीज को जस्टिफाई करो कि तुम्हारा सीजी ज्यादा है, तुम्हारा नॉलेज भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ अगर तुम्हारा सीजी 8 के अराउंड है या मतलब जिसके भी अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए। एंड काइंड ऑफ तुम जो चीज़ आप बेसिकली मतलब तुमको पता होना चाहिए, लॉजिकल भी पता होना चाहिए, यही सब है। बाकी वही जो उसने बोला नील ने कि पढ़ाई तो करना पड़ेगा। एंड बाकी कम्युनिकेशन के लिए मैं ये तुमको मतलब एडवाइस दूंगा, जैसे कि जिसको लगता है कि उसका काइंड ऑफ बहुत अच्छा नहीं है तो क्या कर सकता है कि मैंने जो ट्राई किया था अपने टाइम में कि हम लोग काइंड ऑफ फ्रेंड के साथ में ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप का। एंड उसमें क्या किया कि हम लोग डेली एक एक टॉपिक डालते थे। उसमें क्या करते थे हम लोग की टास्क ये होता था कि डेली जो भी टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर तुम्हें 3 मिनट्स तक कंप्यूटर के सामने लैपटॉप के सामने बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड करके बोलना है। इससे हमको फायदा क्या मिलेगा कि हम लोग काइंड ऑफ कैसे बोल रहे हैं, तुमको अपना एक्सप्रेशन देने का टाइम मिल जाएगा। सपोज मैं बोलता हूँ तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, उस तरीके से बोल रहा हूँ, तो काइंड ऑफ हम लोग कैसे बोल रहे हैं हम लोग खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना। तो अगर तुम्हारे पास काइंड ऑफ डेली वीडियो लॉग पड़ा रहेगा तो तुम काइंड ऑफ ओवर द टाइम चीजें मॉनिटर कर सकते हो कि मेरा प्रोग्रेस कैसा है, मैं अभी कैसा बोल रहा हूँ, आज से 10 दिन बाद कैसा बोल रहा हूँ। और फिर इससे फायदा ये रहेगा कि तुम जब डेली अलग अलग टॉपिक पे 3-3 मिनट बोलोगे तुम्हारा जीडी के लिए हो गया काइंड ऑफ अच्छा मिल जाएगा इनपुट। फिर तुम बात करना सीख जाओगे लोगों से, तुमको कुछ भी अलग रैंडम सिचुएशन मिल जाएगी तो उस टाइम पे तुम होता है ना कि माइंड हमारा काम नहीं कर रहा है क्या बोले क्या ना बोले, उस टाइम पे तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं 3-3 मिनट तक डेली कोई भी रैंडम टॉपिक पे न्यू टॉपिक पे हो गया उस पर बोलता था तो मुझे फायदा कर दिया आखिरकार। अभी फायदा नहीं करेगा मतलब इंटरव्यू जीडी सब तो छोटा छोटा चीज है, आगे चल के जब तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे अपने मेंटर हो गया और भी बड़े लोग जो मतलब पोस्ट पे उनसे इंटरेक्ट करोगे उस टाइम पे तुम मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट करे वो चीज मैटर करती है ना, तुम्हारा काइंड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा है, तो उसी चीजें तुम्हारी डेवलप विद प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब कोई वो होता है जिसका बहुत अच्छा होता है बचपन से हो सकता है, फिर जिसका बहुत सारा मान लो को चलो उसका स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ, कुछ कुछ कोई भी रीजन हो सकता है। तो लोग ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी अच्छा नहीं था तो आगे अच्छा नहीं हो सकता, तुम लोग ट्राई करो अपना इम्प्रूव करने का। रीजन मतलब तुम खुद को अपना पाथ बनाना पड़ेगा कि ये मैं आइडेंटिफाई करूँ मेरे अंदर ये वीकनेस है मैं इसको ऐसे दूर कर सकता हूँ। कोई तुम्हें आके ये नहीं बोलेगा कि मेरा वीकनेस ऐसे दूर कर लो, खुद का अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करो और उसको दूर करने का ट्राई करो, खुद का मेथड सॉल्यूशन ढूंढो, यही है। So we hope we have covered all the probable doubts. If anyone has any doubt, please feel free to ask.